Hello everybody, I'm live. I hope you can see me. Instagram is trying to tell people that I am live. So, Rachna, Gaurav, hello. Hello Vidushi, Srishti, Juhi, two others, Papa, Sahilansh, hello. मेखला माथुर के बाद टू अदर्स हैव जॉइंड लिखा है लेकिन उनका नाम नहीं दिख रहा. सो इफ़ यू गाइज कैन जस्ट सेंड मी टेल मी योर नेम ऑल्सो. जो दो लोगों का नाम मैंने नहीं लिया अभी तक, तो आई विल बी एबल टू से हाई टू यू टू. हेलो संकेत. ओके, हेलो एवरीवन. सो वी आर हियर लाइव ऑन एपिसोड 7 ऑफ सीजन 2 वाई हाइड. हेलो ठाकुर दिव्यदीप सिंह. Hello Chachi, hello Mosi, hello everybody. Thank you so much for joining. Hello Pramil Pandit, hello Nidhi, hello Geet, hi Geet, so there are two Geets. Hello Papa. Okay, thank you so much everybody for joining. It is so good to see you all. Hello Srishti. Jovi_EE. Okay, so thank you so much everyone whosoever has joined. I think we have a good count here. Hello Harshit, hello Mummy. So let's get started with, thank you Rachna, hello Shivam. So let's get started with the show today. Hello Shilpa, Bhabhi, Manan, hello. So आज का जो show है, I have two guests today. और इस शो के जो गेस्ट हैं, नंबर 1 दैट इज़ द विनर ऑफ एक्स फैक्टर इंडिया. तो एक्स फैक्टर जो इंडिया में हुआ था उसके जो विनर हैं वो हैं हमारे साथ आज. हिज नेम इज़ गीत सागर. आई एम श्योर एवरीबडी नोज हिम, बट we'll have a chit chat with him and we'll listen to him also today live. Hello Chacha, hello Sachin. Okay, great. तो जैसा कि आप जानते हो, हर शो की शुरुआत में मैं गाता हूँ एंड देन वी कॉल अपॉन आवर गेस्ट्स. सो हेलो सिमी, हेलो लक्ष्य. सो थैंक यू सो मच. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जॉइनिंग इन राइट नाउ, सो आई नो दैट पीपल विल कीप कंटिन्यू टू जॉइन. तो आप लोग ज्वाइन करते रहिए. वी विल जस्ट स्टार्ट. तो अपने गाने से मैं शुरुआत करूँगा आज का. जो ये वाला गाना है, ये भी मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि उन्होंने नहीं सुना था एंड दे वांटेड मी टू सिंग दिस अगेन लाइव फॉर देम. सो जिसने भी रिक्वेस्ट किया था उसके लिए ये, but I'm sure it is one of the most beautiful songs ever created, and primarily इसमें Mr. A.R. Rahman के music है, so this is just super awesome song. तो I hope you like it. सुनते हैं. Hello Anu. Hello Parth. Geet, I have your request, so thank you so much for that. खुदा अपने वलियों से होता है राज़ी, मिलेगी ये दर पे हमें सरफराजी. यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है. हेलो चाची, हेलो पुलकित, हेलो दादी जी. शाहे समंदर इब्ने हैदर, शाहे समंदर एक नजर, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी
पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया Thank you so much. I saw a lot of beautiful comments. Thank you, everybody, for all the beautiful comments. I see a lot of people here जिन्होंने बाद में join किया था. So I just see Chirag, Prerit. Thank you so much. Beautiful comments. I was just reading them. बहुत अच्छा लग रहा था सुन के, देख के I mean. But thank you so much. It means a lot to me. Thank you so much. Thank you. Okay, wonderful. I think it's a great start. So let's move on and call upon my guest for today, who is Geet. So Geet, if you can hear me, let's have a chit chat quickly. Okay, I just sent you a request. Kindly accept it. Hi everyone, can you hear me? Hello. Yes, absolutely. Hi, yeah. So I lost my humble small headphones, so that's why this show off headphones. And while you were singing Haji Ali, I went in that mood जहाँ पे मैंने सारी जो बड़ी लाइट्स हैं घर की ऑफ करके, I hope I'm fairly visible, और मैंने सारी जो खूब ज्यादा रोशनी वाली लाइट्स ऑफ करके मैंने छोटी छोटी लाइटें जलाई हैं, so that you know it's I am also in that mood. And what a beautiful rendition. क्या बात है साहब, very well. Thank you so much, Geet. I think this means a lot coming from you. So thank you so much. It was really wonderful. It was really wonderful. And I saw a lot of people from your family. Srishti is there. कुछ मेरे दोस्त भी आ रहे होंगे, आते होंगे, आए होंगे. सबको मेरा हेलो है. Hello, welcome to Why High. Thank you, Geet. So guys, here it is. He is the winner of X Factor India, Geet Sagar, जिनको I know कि सृष्टि ने भी लिखा भी वैसे, जैसे Shreya used to call you Geet Sagar. So obviously I can't say like that. But, you know, she had that song. जब वो बोलती थी तो that was different. But yeah, I think a lot of people recognize by the way she used to call you. So बहुत ही amazing था. I think it was जैसे कहते हैं ना, आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा टेंशन भरे माहौल दोनों था. वो टेंशन भरा भी उतना ही था जितना कि अच्छा था. And I was just lucky to have her as my mentor. Yes. Lovely. Okay, perfect. So Geet, I know कि बहुत सारे लोग बस अब ये कोशिश कर रहे होंगे या चाहते होंगे कि कुछ हो जाए छोटा सा आपसे. मैं वही सोच रहा था कि what will be an apt song to sing. तो X Factor में भी मैंने ये गाया था और मेरा पर्सनल फेवरेट भी है ये गाना. So let me try singing that. Sure. दुनिया पर आई छोड़ के आजा, झूठे सारे नाते तोड़ के आजा, सौरभ दी तुझे एक बारी आजा, अब के मिले तो होंगे ना जुदा, ना जुदा, ना जुदा, मुड़ते आए मायरी कोई चले आए, मायरी याद वो आए गल्लाओ कर दी, मायरी अखा नाल लड़ दी, मायरी याद वो आए
क्या करूं कैसे कहूं ए मायरी अब क्या करूं कैसे कहूं ए मायरी वाओ, ब्यूटीफुल यार। एक तो ये गाना वैसे ही इतना जबरदस्त है और आप उसको इतना ज्यादा जबरदस्त गा रहे हो। थैंक यू सुपर, वेरी मच थैंक यू वेरी मच वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। और ये इतने सारे जो कमेंट्स हम नीचे देख रहे हो, दे जस्टिफाइंग व्हाटएवर आई एम सेइंग राइट नाउ। सो मेरा कमेंट्स आई थिंक समहाउ नहीं आ रहे हैं वो सोच रहा हूँ कि ये कहाँ से आएंगे डू यू हैव एनी नहीं आइडिया वेयर आई क्लिक नहीं मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे so I'm ओ, wondering what should I click to see them because there are only two buttons live and 36 content people watching and yeah I don't know anyway yeah कोई बात नहीं। तो आई कीप bad luck कम्युनिकेटिंग टू यू कि hard luck जो भी नीचे लोग बोलते हैं, सो दे आर yeah जस्ट सेइंग सुपर लवली ऑसम अमेजिंग सॉन्ग, दिस सॉन्ग thank you सूट्स योर वॉइस एंड वेरी thank you नाइस वॉइस। thank you सो thank you so generous of you all and I know ये सब ठीक ही होगा तभी बोल रहे yeah सब लोग सब लोग सच ही तो बोल रहे हैं ना, तो yeah just got to acknowledge that it was amazing. So yeah thank you very much that's so generous perfect. Okay, Geet, I think थोड़ी सी बातें करते हैं। I think yeah let's जरूर go to your X Factor days, क्योंकि I know कि बहुत सारे लोग उस बारे में पूछना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि how has been your journey, आपका association with the X Factor, your association with the judges, your mentor especially. So कुछ बताइए उसके बारे में। uh, definitely once in a lifetime experience definitely जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि डर एक्साइटमेंट एंजाइटी खुशी सब कुछ एक ही लेवल पे था सो इट हैपेंड वेरी सडनली मैं बहुत सारे रिजेक्शंस लाइफ में देख चुका था इंडियन आइडल 1 में उसके बाद 5 इंडियन आइडल आई थिंक 5 से भी रिजेक्ट हो चुका था एंड आई वाज लाइक ओके if this is what it is and I had given up my job in 2009 November कि I want to I will rather sing मैं रेडियो जॉकी था एक रेडियो स्टेशन में 2-2.5 साल तो I was like okay I'll rather give this up and do music and I was jobless small time jobs कहीं कुछ मिल गया करता था और इवेंट मैनेजमेंट का बैकग्राउंड था तो थोड़ा बहुत इवेंट मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा था आई हैड रजिस्टर्ड अ कंपनी तो शुरू के ऑडिशंस में दे चुका था और मुझे बहुत उम्मीद नहीं थी मैंने कहा ऑडिशंस तो बहुत दिए फर्स्ट 2 राउंड्स बहुत जगह क्लियर किए हैं 2-3 राउंड्स सो ओनली व्हेन आई रीच्ड गोवा राउंड जहां पे टॉप 25 में से टॉप 12 सेलेक्ट हो गए एंड द टीम्स वर गिवन एंड यू वर टोल्ड कि आप श्रेया घोषाल की टीम में हैं सो इट वाज लाइक अनबिलीवेबल ऑब्वियसली एंड I can't thank enough my stars and universe. I'm very very grateful. So वो हुआ और फिर वन डे आई वन द शो मुझे इतना ही याद है बाकी सब ऐसा है कि ओके हार्ट बीट बढ़ी हुई है ऐसा लगता था कि वो 3 महीने हार्ट बीट बढ़ी हुई है और आप एंजाइटी में ही हो 3 महीने सो दैट हैपेंड सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू श्रेया जी बिकॉज आई थिंक वो ना बहुत दोस्ती जैसी भी थी हम उम्र है तो दोस्ती जैसा था ईज था एंड व्हाटएवर शी टॉट उस समय जो कुछ भी मैं सीख पाया उस छोटे से दरमियान में और आई होप आई कुड मेक हर प्राउड देन एंड देन फोर्थ तो मुझे लगता है आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर एंड सोनू जी का तो ऐसा है कि मैं हमेशा से फैन रहा हूँ और फैन बॉय तो वो मोमेंट तो मेरे लिए हमेशा ये था ही कि ओह इनके सामने गा पा रहा हूँ संजय सर और मैं बर्थडे शेयर करते हैं वी हैव द सेम बर्थडेज तो yeah so I was in front of legends and performing and I think कितने लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि आप उनके सामने परफॉर्म करते हो उनसे गाइडेंस मिलता है क्योंकि क्रिटिसिज्म इज अ गाइडेंस अगर आप उसे सही तरह से लेते हो तो क्रिटिसिज्म इज गाइडेंस तो वो उनसे मैं एपिसोड दर एपिसोड ले पाया मेरे साथ जो कॉन्टेस्टेंट थे जितने भी वो कंटेस्टेंट्स मतलब उनसे इतना सीखने को था चाहे वो सजदा सिस्टर्स हो दीवाना हो निर्मिति हो पीयूष हो सीमा हो एवरीथिंग हैड मंजीरा हो आई थिंक एवरीवन
taught me in that time and supported me and loved me. जितने हमारे मेंटर्स के जो असिस्टेंट्स थे, जिन्होंने उनको मुकेश सर हो गए या सुरपाल सर हो गए या केदार सर मतलब केदार सर से तो फैमिली जैसा हो गया. सर every person, every moment, every episode, every day was a blessing. That's how I remember my X Factor days. A detailed answer. 10 में से 10 marks. ये वाला ऐसा आंसर है इसमें ऐसे मैम सिर्फ ऐसे तो बड़ा सा टिक बना के 10 नंबर. हाँ 10 में से 10 दे देती हैं. I was the chosen one from universe. और अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो just because 10 साल होने को आए इस बात को. So otherwise I am really thankful to each and every person. Yeah. Okay. ये सुनने में fascinating लगता है ना कि you've been part of a show that is telecasted on the television. People are watching you. You're performing in front of the legends जो already मतलब एक industry में इतने नाम कमा रखा है जिन्होंने. तो I think ये एक बहुत बड़ा I guess my show is all about this. So this is what I try to do. I try to motivate people कि वो अगर कुछ talent है कुछ है तो उसको निकालो, उसको दबाओ. Yeah. Just it's a brilliant name. Huh? It's a brilliant name. Why hide is like obviously like it's like come on. Thank you. हाँ तो actually जो name है that is what the motive is as well कि बस मैं ये चाहता हूँ कि people come out and just do what they want to do. So I think guys you see Geet here and he's talking about his journey. He has faced rejections in the past and then but he still उन्होंने कोशिश की and now see where he is right now. So just never give up. Just Can I add something here? Allow me to. Please. So ये सोच लेना ना आई थिंक सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो पिछले शायद 6 महीने साल भर में गया है मेरे दिमाग से, वो ये कि हमको जो बड़ा किया जाता है ना, वो हमेशा इस तरह से बड़ा किया जाता है कि कहीं पहुंचना है, कब होगा या क्या बनोगे. और ये ना आई वुड humbly want to suggest everyone who's watching that there is no destination and that is the biggest blockage because वो आपको जर्नी एंजॉय नहीं करने देता क्योंकि आप इस एंजाइटी में रहते हो कि कहीं पहुंचना है, कहीं नहीं पहुंचना. और जिसे आप स्ट्रगल कहते हो उसी को जस्ट अगर आप पॉजिटिव कॉनोटेशंस में लर्निंग कह दोगे डेली या हैपनिंग्स कह दोगे लाइफ की, तो वो कभी खत्म नहीं होती. अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्स फैक्टर जीतने के बाद मेरी स्ट्रगल, अगर आप स्ट्रगल उसे कहना चाहते हैं, मैं स्ट्रगल नहीं कहना चाहता, अगर आपको लगता है उसके बाद कुछ आसान हो गया या कुछ प्लेटर पे मिलने लगा, ऐसा नहीं. उसके बाद के स्ट्रगल, पेन, एक्सरसाइजेस, दुश्वारियां अलग चेंज हो जाती है. दे जस्ट चेंज शेप्स, सो दे चेंज देयर प्लेट्यू, So I don't think there is a destination. I think the biggest misconception or biggest blockage हमारे बचपन से जो हमारे दिमाग में डाला जाता है, that is the destination. And when you keep living through it, I think one day you realize कि, oh, okay, there is no destination. Yeah, there are stoppages. You stop, you breathe, you enjoy the view, and then you go forward. So there is no destination. I would like to believe so. That's very apt. और actually जो मेरा जो theme question होता है गीत, it is the same question which I call the why hide question. तो वो इसी में cover. I don't have to ask you this again because ये I'm glad. I think this example fulfills all the boxes जो मुझे चाहिए थे. उसमें सारे boxes मेरे tick हो गए उसमें. So I think I am good job. I'm glad. Okay, perfect. Let's move on. गीत मेरा जो next segment है इस show का वो होता है एक quick rapid fire. Right. उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें because you are a singer, so obviously हम ये चाहते हैं कि जितना हो सके निचोड़ लो बस, है ना, क्योंकि सुनने का That's right. जितना मन करे उतना कम है, जितना सुनने को मिले उतना कम है. That's fine. Absolutely, my pleasure. Thank you. तो मैंने आज का जो रैपिड फायर है वो थोड़ा सा छोटा रखा है. It's not generally what I do is I keep it 5 questions. Okay. आज मैंने 3 रखे because मैं चाहता हूँ कि जो भी वो 3 हैं वो मतलब हम अच्छे से सुने उनको, चाहे दो लाइन मतलब म्यूजिकली ओरिएंटेड है. Okay. तो चाहे 2 लाइन सुने बट आराम से सुने, ठीक है. तो मूविंग ऑन टू रैपिड फायर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, मैंने अभी आपका जो लेटेस्ट इंस्टाग्राम पे चल रहा है, आई सॉ दैट यू जस्ट रिलीज्ड अ न्यू सॉन्ग. या
So I am not going to talk about it. You want to talk about this, and then we want to hear that also, please. Okay, so there's this beautiful song called Meri Azadi, written and composed by Abhishek Das Gupta, जिसे हम प्यार से रॉबिन भी बुलाते हैं. और रॉबिन श्रेया जी के साथ he has toured the world playing guitar. Oh wow. He is the guy. Yeah. So Robin composed the song, and इसका जो main version था, original version was sung by Vinny Tikku, and he was kind enough. Robin was kind enough to one day call me, and he was like, "Bro, इसका unplugged गाएगा तू?" And I grabbed the opportunity also because friends के बीच में और artists के बीच में है ये बात, और इसलिए भी कि जनरली मेरे वॉइस टेक्सचर को देखते हुए ना मुझे ग्रंज और हाई एनर्जी गाने को मिलते हैं. इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सिंग समथिंग mellow and soulful. So I grabbed the opportunity, and I should try singing it for you. Please. So this is about, the song is so beautiful. It is about हम दोनों लोग जो हैं, जो फ्रेंड्स हैं या जो सोसाइटी है या जो कंट्रीमैन है, अगर हमारे विचार नहीं मिलते, अगर हमारी बातें नहीं मिलती, अगर मैं सच बोलता हूं और तुम्हें कड़वा लगता है, will you still choose my freedom? Will you choose my freedom for that? Will you be kind enough and generous enough and empathetic enough कि तुम मेरी आजादी मेरे लिए चुनो? ठीक है, तुमसे मैच नहीं करेगी पर डिफरेंट हो सकती है. अगर मैं सच कहूं, अगर मैं सच कह दूं, मित्रा मेरा साथ दो, फर्क है हम दोनों में, अगर फर्क है हम दोनों में, मित्रा मेरे लिए तुम लड़ोगे क्या? मेरी आजादी, मेरी आजादी, मेरे लिए तुम चुनोगे क्या? मेरी आजादी, मेरी आजादी, मेरे लिए तुम चुनोगे क्या? वो 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 मेरी आजादी, मेरी आजादी, मेरे लिए तुम चुनोगे क्या? Thank you. I think I took it a little, थोड़ा ऊंचा ले लिया मैंने, बदल रहा है भाई. हमें तो ये भी बहुत अच्छा लगा. तो थैंक यू वेरी मच. मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा गाइस, एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग राइट नाउ, आप ये गाने को चेक करिए. गो ऑन YouTube, गो ऑन हिज पेज, गीत सागर ऑफिशियल का पेज है, एंड जस्ट लिसन टू दिस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल songs. sorry to interrupt you. So people, Spotify पे गीत सागर अनप्लग्ड अगर आप डालेंगे मेरी आजादी from the band Zia, ZIA is the name of the band which has shown it. So Spotify पे मेरी आजादी, गीत सागर and Zia अनप्लग्ड. मेरे Instagram ID पे आपको IGTV पे इसका वीडियो भी मिलेगा, और मेरे Facebook पेज पे भी मिलेगा. गीत सागर का जो Facebook पेज है उस पे भी मिलेगा. So you can see the video there also. Perfect. Please go watch. It's going to be super awesome. थोड़ा सा तो हमने सुन ही लिया, पूरा सुनेंगे वहां पे जाके. So everybody who's listening, please go and watch. Okay, गीत. अब यार ये देखो रैपिड फायर था, हम बतियाने शुरू हो जाते हैं बीच में. Next question. Let's go. Yeah. Next question is any old melody, any old song. Okay. मेरे को जो बहुत गाना था, नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सुनी बैया सजेगी सजना, तुझे थामे कई हाथों से मिलूंगा
याद भरी रातों से नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, हो तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ, क्या ही बोलूं यार मैं. I really have no words. This is so beautiful. बहुत ही थैंक यू. और आई नो कि आप कमेंट्स नहीं देख पा रहे हो, बट मतलब जो मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ यही आ रहा है. इट इज पार एक्सेलेंस. थैंक यू वेरी मच. दैट्स सो काइंड ऑफ एवरीवन. बहुत ही अमेजिंग. ओके जी, चलो अगले वाले पे बढ़ते हैं. आई डोंट नो बट पूछता हूँ मैं फिर भी. हैव यू सung in any other language except Hindi? Okay, so when it comes to singing, okay, you want me to sing in another language, any song, or is it any? Okay. So I have sung in few other languages. जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले तेलुगु में गाया, जिंगल्स गाए हैं साउथ की सारी लैंग्वेजेस में. लेकिन मैं जो गाना अभी गा सकता हूँ वो किशोर दा का एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है. मेरे पापा गाते हैं कभी-कभी, तो मुझे এই যে নদী যায় সাগরে, কত কথা শুধাই তারে, এই যে নদী যায় সাগরে, কত কথা শুধাই তারে, এত জানে তবু নদী কথা বলে না, কথা বলে না, কেন বলে না, কেন বলে না, এই যে নদী. थैंक यू. क्या बात. अमेजिंग. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. और यस बहुत ही सारे ऐसे गाने हैं यू नो इन बंगाली जो जिनका हिंदी वर्जन्स भी हमने सुने. आई थिंक जो ओरिजिनलिटी होती है, जो ओरिजिनल होता है, वो इट्स जस्ट ऑसम. या आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू. और बंगाली गाने इतने खूबसूरत, लैंग्वेज इतनी खूबसूरत, it's all wonderful, and they have contributed so much to the culture, so the culture of our nation. Yeah, absolutely. Okay, so Geet, with that we come to the end of rapid fire. I think you've done pretty well. Okay. तीनों गाने thank you very much. Thank you very much. So without taking any time, और I was just reading the comments also. जो लोग यही लिखे जा रहे हैं उसमें कि wow, superb, awesome. मतलब इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं. people are really kind. They have always been kind to me. They have always been generous to me. It's them. People do support good music, right? And you are giving us that good music, so that's why they're supporting you. So thank you very much. Great job. Okay, Geet. I know कि unfortunately we have to keep this session a little shorter. No problem. I understand. So जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, आप ये सोचना शुरू कर रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. So let me tell you the reason. Mr. Geet Sagar is a busy man.
और उनके पास और भी बहुत सारे हैं, उनके पास और भी बहुत सारे I would ऑप्शंस हैं, like to अपॉर्चुनिटी। humbly I would like to say कि कुछ चीजों की deadlines थी, and I requested Sarthak if we can keep this session a little smaller, and he generously agreed. So I want to say कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोगों के लिए मैं हमेशा हूँ, and they have contributed a lot in my journey. It's just that today happens to be a deadline of two of other things which I have to finish and give them. So as soon as I go away from this session, I'll get to work, and that's why the session is shorter. And I really, really apologize for that. नो प्रॉब्लम, नो। आई थिंक जितना कभी कभी क्या होता है, कुछ छोटी चीजें जो होती हैं, जैसे अभी इसमें शॉर्टर ड्यूरेशन था, तो अभी हमारा मन कर रहा है कि यार और होना चाहिए था। सो आई थिंक दिस इज व्हाट जो ज्यादा अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार चलो यार बस। सो Right, ये वाला फीलिंग ज्यादा अच्छा है कि यार शिट, थोड़ा टाइम और होता तो मजा आता। बट right. आई थिंक इट्स इट लीव्स अस विद दैट अपॉर्चुनिटी कि हम दोबारा कभी फिर से मिलेंगे, Yeah, एंड absolutely, absolutely. we'll have more time together to talk to each other, to listen to each other, and entertain our friends. Yes, absolutely. I would look forward to it. Perfect. Srishti says we loved it. Wish it was longer. Yes, I know. So बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। Thank you, Srishti. Srishti played a big role in making this happen. So thank you, Srishti. This was wonderful. Thank you very, very much. And thank you, Sarthak. It was a pleasure. And thank you, everyone, for joining us. It was such a nice, small, nice, warm session. Thank you very much. Thank you, Geet. Thank you, everybody. So I think अभी everybody तो आप रुको, क्योंकि अभी there is somebody else also that I have. So I can log Geet, off? Would you हाँ, want me to log off? Yeah. You can still be part of the show अगर आपके पास अभी Okay. time हो तो. But yes, so I am going to take somebody else live now. Yes, please. जिनसे I'll मैंने watch you as a जिनसे viewer. या सो मैंने I'll उनसे watch you. रिक्वेस्ट किया कि यार मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, इफ यू कुड प्लीज थोड़ी देर के लिए अगर आप आ पाए तो, एंड ही वेरी हम्बली ही सेड यस यस ऑफ कोर्स, सो आई विल टेक हिम लाइव। Sure. I'll take your leave. Thank you very much. That's so nice. थैंक यू जी, इट वाज वंडरफुल टू टॉक टू यू, वी हैड एन Thank अमेजिंग you. टाइम विद यू। थैंक यू, Thank you very much, Sarthak. टेक केयर, बाय। Bye-bye. वाओ, ओके यार, ये कितना कम लग रहा है अभी। यू कांट टेक टू, नो आई कांट, देयर इज ओनली अ लिमिट टू हैव वन पर्सन एट अ टाइम, तो एक बारी में एक ही हो सकता है। सो reading films, if you are still here, I can see it was amazing aapka message, so if you can please send me your request and then I will take you live also, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों में से मुझे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। so if you can please send me the request. by the way, जो अगले आने वाले हैं अभी, his name is Pulkit, और he has his own studio जिसमें ये he does content writing, content creation, और फिर ये videos बना के YouTube पे डालते हैं, and he has a great following, fan following on YouTube. So I'm sure when he talks about his shows and whatever he's done, you'll like it, you'll love it. So Pulkit, if you can hear me, I would request you to please send me the request. Okay, so let me try and send you a request. Okay, I just sent you a request, Pulkit. If you get it, please accept it. Okay, hi, I can see you. I cannot see you, but still, it's something wrong with the connection, I guess. Oh, you can't see me? I cannot see myself actually. Matlab, can you see me? Yes, we can see you. Damn it. अरे यार, Still, anyway, it's fine, it's fine, it's fine. Thank you, Devadeep. अच्छा आपको comments दिख रहे हैं but you can't see yourself. I can't see myself, but I can see everything else, and I just can see myself. बाकी सब कुछ दिख रहा है. I think It's fine anyway. ये इशू कभी कभी तब होता है जब आपका इंस्टाग्राम का कैमरा ऑफ हो, तो maybe if you want to disconnect this, get मतलब come out of the session, एक बार अपने सेटिंग्स पे जाके कैमरा सेटिंग्स में एक बार चेक कर लो कि वो ऑफ तो नहीं है, बस।
दैट इज फाइन। मतलब मुझे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, बाकी लोग तो देख पा रहे हैं ना, इट्स फाइन। ओके, हेलो ईशा। ओके, सो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जिनका नाम मैंने पहले नहीं लिया था बिकॉज मे बी आई वाज टॉकिंग और समबडी एल्स वाज टॉकिंग, बट सो पुलकित, आर यू एबल टू सी मी? यस, ऑफ ओके, यू कोर्स। कैन सी मी, ठीक है। चलो, एटलीस्ट can you see Sarthak? Yes, हाँ, so he can see me, but we can see you, but you can't यस। see us. You can't see yourself, so that's okay, I guess. Right? अरे बड़ा कंफ्यूजन है यार। चलो, कोई बात नहीं। सो पुलकित, मैं ज्यादा तो नहीं बता पाया कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, सो मे बी डू यू वांट टू जस्ट टेल एवरीबॉडी कि आप क्या करते हाँ, हो? ऑफ कोर्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बात ऐसी है कि मतलब जब से मैंने देखा है चीजों को, जब से सिनेमा जो है इंडिया में ज्यादा बढ़ा है, तो सीन क्या होता है कि पीपल लाइक अस, लाइक इवन मी, वी यूजुअली कंप्लेन कि भाई इंडियन सिनेमा जो है वो उतना अच्छा है नहीं, या इसमें कुछ कमी है, या ये इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं है। तो इसलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बेसिकली शुरुआत की, और जिसके अंदर मैं ये बताता हूँ कि भाई सिनेमा में एग्जैक्टली होता क्या है। तो न्यू कमर्स के लिए है कि भाई आप जो है ये समझ पाए कि सिनेमा एग्जैक्टली में कितना डिटेल में होता है, एंड सिनेमा में छुपे हुए शॉर्ट्स कैसे होते हैं, डिटेल्स क्या होती हैं। तो इसलिए मैंने ये एक चैनल शुरू किया जिस वजह से लोग थोड़ा सा ये जान पाए कि भाई सिनेमा इस तरह से चलता है। एंड अभी क्या हो रखा है कि अब यूट्यूब पे अगर खुद को स्टैंड करवाना है तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स जो है ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो ये भी था एक चैलेंज कि अगर जो है अपने आप को कहीं छोटा सा भी स्टैंड देना है तो चाहिए कि भाई काम एकदम प्रोफेशनल हो। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो फिर आपको कोई सुनेगा नहीं। ट्रू। तो मुझे लगा इस वजह से जो है कि भाई अपना जो है अच्छा सा पूरा सेटअप तैयार किया जाए, और ऑडियंस को वो बातें बताई जाए फिल्मों के बारे में जो उन्हें पता नहीं। लाइक अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, बट स्टिल आई होप कि आप ये पीछे मेरे बैनर देख पा रहे हो, या हाँ, आप देख पा रहे। कुछ दिख हाँ रहा जी, है? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ भी मैंने कुछ फिल्मों के बारे में बहुत सारे पोस्टर्स जो है लगाए हुए हैं, तो काफी बढ़िया फिल्में हैं इसमें भी। तो मुझे लगता है कि सिनेमा को थोड़ा सा और ज्यादा, अगर इंडिया भी चाहे कि भाई सिनेमा और बेहतर होना चाहिए, तो थोड़ा सा मतलब कि क्या कहते हैं, सिनेमा को समझने की क्षमता हर इंसान में होनी चाहिए। ट्रू। उसलिए मैंने ये चैनल बनाया। वाह, मतलब ये काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि आई थिंक जैसे तुम बता रहे हो कि पीपल डू नॉट नो कि ये हुआ कैसे, ये बना कैसे, इसके पीछे का मतलब क्या था। सो आई थिंक इफ यू आर मेकिंग पीपल अवेयर कि ये है, सो आई थिंक दैट इज ग्रेट। और ये मुझे बहुत ही यूनिक लगता है, मतलब आई डोंट नो कि कोई भी शायद ऐसा नहीं करता, मुझे नहीं पता, मतलब आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन आई नो कि जो ऐसा कुछ कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली दैट इज ट्रू। क्योंकि क्या कहते हैं, एटलीस्ट इंडिया में तो मैंने मतलब बहुत ढूंढा, बट मुझे नहीं मिला कोई भी कि जो कि फिल्मों को रीड करे कि एग्जैक्टली शॉर्ट्स का मतलब क्या है, या सिनेमा कैसे चल रहा है। वी जस्ट गो अहेड एंड से कि सिनेमा अच्छा नहीं था, अच्छा कैसे था, या लेकिन उस जो चीजें बारीकियां हैं जिससे फिल्म बनती है, और बेसिकली एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग समझते हैं। एक्चुअली वीडियो होता है जो, या सिनेमा जो होता है, वो इसलिए नहीं होता है कि वो आपकी आंखों के सामने है। वो पॉइंट होता है कि वो जब आपकी आंखों के सामने है उससे मतलब नहीं है। पॉइंट ये मैटर करता है कि जब आप सिनेमा को बंद कर देते हो उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसके लिए ये होता है ना कि कैमरा की पोजिशनिंग क्या है, प्लस कलर सीक्वेंस क्या है। तो ये एकदम मतलब ऐसा है कि जैसे साइकोलॉजी पढ़ने जैसा है। अगर आप उन चीजों को नहीं पढ़ रहे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बेहतर सिनेमा क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अपने बीच की जो ऑडियंस है या हमारे साथ के जो लोग हैं, उन्हें जो है बिल्कुल इस बारे में हल्का तो आइडिया मिलना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली सिनेमा क्या होता है। अगर उन्हें नहीं मिलेगा आइडिया तो भाई वो कहाँ से समझेंगे कि एग्जैक्टली मतलब बढ़िया सिनेमा क्या होता है। फिर तो बस वही बात हो गई कि मतलब छोटे मोटे स्टंट देख लिए फिल्म में और बढ़िया वीएफएक्स लग गए तो फिल्म बढ़िया है। ट्रू। अच्छा, अभी आई थिंक किसी ने लिखा, मैं नाम पढ़ना भूल गया, बट नीचे में दिखाई दिया, कैन यू सी एन एग्जाम्पल, कैन यू शो एन एग्जाम्पल। आई डोंट नो कि तुम अपने आप को नहीं देख पा रहे हो तो एग्जाम्पल दिखा पाओगे कि नहीं, बट कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर हम कुछ देखें कि तुम मतलब क्या करते हो। ऑफ कोर्स मैं एक काम करता हूँ। मुझे नहीं पता क्या मेरा सेटअप दिख रहा है, अभी मैंने कैमरा पे क्लिक किया था, कुछ दिख रहा है
कि मैं दिख हाँ रहा हूँ? सेटअप दिख रहा है, 3-4 मॉनिटर दिख रहे हैं। 3-4 मॉनिटर दिख रहे हैं, हाँ मतलब सेटअप दिख हाँ रहा जी है। हाँ जी। तो दिस इज अ चैनल, मैं मतलब दिखाना चाहूंगा। अ, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो बस ये खुल रहा है, मैं इसको खोल रहा हूँ। ओके। तो दिस इज माय चैनल बेसिकली। तो इफ वी टॉक अबाउट, एक रिसेंट में फिल्म आई थी गुंजन सक्सेना, हाँ हाँ। राइट? प्लीज नो इट। यस। एंड आई थिंक यू तो गॉट अ। गुंजन सक्सेना पे मैंने एक वीडियो बनाया था। हाँ हाँ। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा प्ले नहीं करना चाहूंगा, बट स्टिल यू गाइस कैन सी एक्चुअली कि व्हाट आई डू यूजुअली। भाई गुंजन सक्सेना इस फिल्म को मिल रही है काफी ज्यादा हिट। तो बात क्या है, सिर्फ इसलिए हिट मिलने की क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है? कैन यू सी इट? यस यस। कैन यू हियर द ऑडियो एज वेल? यस। थोड़ा सा आपको अगर अगर पॉसिबल हिट थोड़ा सा मिलने अपने की स्क्रीन के क्योंकि पास ले जाओ। ऑफ कोर्स। अभी ठीक है? हाँ जी हाँ जी। कि जानवी जी एक बार जरा हंस के दिखाई। अच्छा कुछ एक्शन करा करिए, जोश के साथ आपको ये डायलॉग दिया गया, मुझे फायर। तो भाई ये पॉइंट तो कभी नहीं जा पाएगा कि एक्टिंग तो इंशाल्लाह सुभान अल्लाह वहां भी खूबसूरत ही है एक्टिंग, बट अब इस पे तो कुछ कर नहीं सकते। हम लोग बस सिर्फ इस बारे में बात नहीं करने वाले कि भाई एक्टिंग बुरी है। अभी हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है फिल्म की मेजर ऐसी गलतियां जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में। तो आज हम बात करने वाले हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिन पॉइंट्स को नजरअंदाज कर रही है दुनिया। इसलिए स्वागत है आपका रीडिंग फिल्म के एक और नए वीडियो में। पहले तो जरूर कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और हम शुरू करते हैं। लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। समय के हिसाब से चीजें बदलती जाती है। लाइक एग्जाम्पल, टी शर्ट बदलती जाती है, प्रिंट बदलते जाते हैं, दीवारें, घर, सब कुछ बदलता जाता है समय के हिसाब से। तभी तो बनती है पुराने समय की फिल्में नए समय की फिल्में। बट अकॉर्डिंग टू गुंजन सक्सेना अगर आप देखेंगे तो ऐसे सीन में आपको देखने को मिलेगा कि भैया सन 1980 के करीब डबल डोर फ्रिज में से ऊपर लड़की अमूल का फटा आइसक्रीम निकाल रही है। ये अमूल का वही डब्बा जो 1980 में आता था और यही डबल डोर फ्रिज चल रही थी। तो कम से कम ये तो समझिए भाई आप फिल्म मेकर्स, धर्मा प्रोडक्शन सर, करण जौहर सर, कि भाई कुछ मत करो, कम से कम इतना तो स्टडी कर लो यार कि कौन सा मतलब शॉट लेना है। वो वाकई में फिर जाता था नहीं आता था, डब्बा आता था नहीं आता, बना रही कभी खुशी कभी गम। मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कारगिल है दरअसल ये वॉर नहीं है, इसे कहा जाएगा कि ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कारगिल तो हमें हमेशा से जंग ही बताई गई है, बट एक्चुअली में वॉर उसे कहते हैं जहां पे दोनों ही कंट्रीज ने ये डिक्लेयर कर दिया हो कि हमारी आर्मी ट्रूप्स सामने वाली कंट्री के आर्मी ट्रूप से लड़ने के लिए निकल चुके हैं। बट कारगिल में ऐसा नहीं हुआ था। वो आर्मी की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी की के मिलिटेंट्स, बट वो पाकिस्तानी आर्मी ट्रूप्स नहीं थे और इंडियन के आर्मी ट्रूप्स थे। एंड दिस वाज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द बोथ द नेशंस कि हम वॉर पथ पे हैं या हम जंग पे हैं। तो इसे वॉर कैटेगरी में नहीं कहा जाता, बल्कि आप इसे अगर मिलिट्री की भाषा में बोले तो कई लोग इसे स्कैरिमश बोलते हैं, बट आप इसे एक लेमैन की भाषा में बोल सकते हैं कि ये दरअसल एक कन्फ्लिक्ट था। मैंने आपको इसलिए इन्फो दी ताकि आप ये समझ जाए कि दरअसल कारगिल एग्जैक्टली में है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ गुंजन सक्सेना के बारे में कि फिल्म में ऐसी मेजर कौन सी गलती है जिस शुड आई पॉज इट यस यस। बिकॉज अच्छा मैं दिख रहा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, मैं खुद को दिख रहा हूँ या नहीं। हाँ अब आप दिख रहे हो। आई थिंक ये बहुत ही सही है हाँ यार, मतलब एक बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ चीज, बारीकियां बहुत सारी। मुझे आई थिंक आई लव्ड द पॉइंट वो डबल डोर वाला। सो ये मतलब हाँ। कैसे आप सोच सकते हो ये कि उस टाइम पे ये वाला फ्रिज होता था कि नहीं, कहाँ से लाते हो इतना दिमाग? एक्चुअली में बात यह है कि जब मैं कोई फिल्म देखता हूँ तो मतलब ये जो है ना रीडिंग फिल्म्स, तो छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको कि जब मेरे बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वैसे तो मतलब काफी अच्छे मतलब नंबर थे, मैंने उसको मैं फ्लॉन्ट नहीं करना चाहूंगा लेकिन जब मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे थे तो मतलब ये सीन था कि यार पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे, क्या सीन होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो भी था उस टाइम पे भी ये था कि मैं भाई एग्जाम के रात की मतलब होता है ना कि अगले दिन एग्जाम है तो आज तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता था मेरे साथ। मैं पिछली रात एग्जाम मतलब सॉरी
फिल्म देख करके ही सोता था। तो उस टाइम पे मेरे को एहसास हुआ कि फिल्मों से मेरे को अलग लेवल का प्यार है। तो जब इतना मैं फिल्मों में घुसा तो फिर मेरे को समझ में आया कि फिल्में यार इट्स एक्चुअली नॉट जस्ट अ मूविंग पिक्चर, इट्स अबाउट साइकोलॉजी। तो फिर वहां पे मेरे को समझ में आया कि काफी दिमाग लगता है यार, और फिर ये भी लगता है कि यार कोई डायरेक्टर अगर मूवी बना रहा है तो वो बस ऐसी सोच के नहीं बना रहा होता, मतलब ऐसी हवा में नहीं कुछ भी चल रहा, तो ब्रेन के पीछे क्या चल रहा है उस पे इम्पैक्ट मारना है। तो मेरे को लगा कि यार कि फिल्मों को ना स्टडी करना पड़ेगा, फिल्मों को समझना पड़ेगा। और फिर ये हुआ कि धीरे धीरे फिल्में देखने के बाद मेरे अंदर खुद ये सोच समझ आने लगी कि भाई फिल्म जो है एग्जैक्टली चलती कैसे है, कंटिन्यूटी होती क्या है, और मतलब फिल्मों का जो इम्पैक्ट है वो इतना गहरा होता है कई बार कि आदमी अपने आप को चेंज कर लेता है। लाइक मतलब मेरे लिए भी ये था कि मैंने रश देखी थी, रॉन हावर्ड की मूवी थी रश, जिन्होंने डायरेक्ट किया था उसको। तो रश देखने के बाद जो अलग लेवल का मोटिवेशन आया था, और कई बार हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मूवीज देखने के बाद मोटिवेट हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये मूवी तो मतलब काफी ज्यादा मोटिवेट की, तो मुझे लगा कि यार फिल्मों को ना थोड़ा सा और मतलब एक्सटेंसिव होना चाहिए और लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मुझे मतलब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझते समझते फिल्मों को समझते समझते ऐसा समझ में आया कि यार फिल्मों को देखते देखते समझ में आने लगा कि यार फिल्में जो है वो बहुत ही डेप्थ में होती है। पर ऑडियंस क्या है ना, वो ऑडियंस 2 घंटे बैठती है पॉपकॉर्न लेकर के, उसको समझ में नहीं आता कि भाई ये तो 6 महीने 8 महीने साल 1.5 साल 2 साल की मेहनत, तो ये कैसे निकल करके एक एक शॉट का मतलब होता है। इसलिए मुझे लगा कि इंडिया में काफी कंप्लेन होती है ना कि हमारा सिनेमा बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कम से कम हमारी ऑडियंस को ये तो पता होना चाहिए कि सिनेमा एग्जैक्टली होता क्या है। इसलिए मैंने ये चैनल जो है शुरुआत की, और मतलब इसी चैनल के थ्रू मुझे काफी अब एक्नॉलेजमेंट अब मिलती है, अभी इससे पहले उतनी नहीं मिलती थी, क्योंकि बेसिकली यू नीड अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म, राइट। तो अभी उतनी नहीं मिलती, मतलब पहले नहीं मिलती, सॉरी। बट अभी हाँ, पीपल एक्चुअली रिकॉग्नाइज कि भाई तेरे को फिल्म की इतनी समझ है, देन व्हाई डोंट यू डायरेक्ट दिस फिल्म, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड विद अस, व्हाई डोंट यू गेट विद अस। तो ऐसी सी चीजें हैं कुछ। वाह, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग यार पुलकित। अच्छा, एक बात बताओ कि अपार्ट फ्रॉम दिस डू यू हैव कुछ और टैलेंट, कुछ गाते वाते हो तुम? क्योंकि एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे शो में जितने भी लोग आते हैं वो सब गाते हैं ज्यादातर। तो क्या ऐसा मैं कुछ गाता हूँ बट बाथरूम में? आयरनी इज, इफ यू कैन सी, ये मेरा गिटार है एंड द थर्ड स्ट्रिंग इज ब्रोकन राइट नाउ। So I don't feel like that I should sing now guitar, but actually if people are actually requesting it कि थोड़ा सा गाना वगैरह गाया जा सकता है, तो of course why not, बिना गिटार के, yes of course why not। हाँ, बस 2 लाइंस ऐसे ही। अच्छा, can you like this really suggest me anything। सॉरी, थोड़ी आवाज कट रही है तुम्हारी। मैं बोल रहा हूँ suggest me anything, anything। एनीथिंग एनीथिंग, हाँ। Anything as in you suggest me anything। अच्छा, all right। there was this song, काफी पुराना है एंड काफी शायद लोगों को मूवी है पसंद हो, आनंद, शायद आपने भी देखी होगी। आनंद देखी? नहीं देखी? हाँ क्या है? पुलकित, तुम्हारी यार आवाज ना, मतलब आई थिंक नेटवर्क की वजह से वो बार बार गोल 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 घूम रहे हैं। मैं पूछ रहा था आनंद देखी है हाँ आपने? हाँ, देखिए। ठीक है, तो लेट मी सिंग दिस सॉन्ग फ्रॉम आनंद विच आई बिलीव एवरीवन लाइक्स, बट गिटार टूटा हुआ है सो प्लीज माइंड। इट्स ओके, जज नहीं कर रहे हम, सिर्फ ऐसे ही मजे के लिए। बस 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 आ गया। चिंगारी कोई भड़के, अच्छा, दिस वाज नॉट फ्रॉम आनंद एक्चुअली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गाओ। अच्छा, आई वाज समवेयर एल्स। अच्छा है गाना। नहीं 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 नहीं, आई थिंक आनंद का एग्जैक्टली सॉन्ग ये था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से खाए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर
जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आके कहीं मचल के प्यार से चल के छुए पर मुझे कोई नजर न आए नजर न आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। थैंक यू सो मच यार, इससे आगे मैं गा नहीं तुम कहाँ छुपे बैठे हो तुम? अच्छा खासा इतना बढ़िया तो गाते हो यार। सुपर, बहुत अच्छे। अभी अब देखो मेरा मन कर रहा है कि जो तुम पहले गुनगुना रहे थे थोड़ा सा वो भी गाओ अभी। पहले क्या? जो तुम पहले गा रहे थे चिंगारी कोई भड़के वाला, अब अच्छा। थोड़ा सा वो भी गाना पड़ेगा, वो अच्छा गा रहे थे। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए हाँ, उसे कौन बुझाए। बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। इतनी बात तो काफी होगी लोगों के लिए समझने के लिए। नहीं बहुत सही यार, बहुत अच्छा गाते हो तुम। मतलब आई थिंक अगर तुम थोड़ा सा इसको सीरियसली लोगे तो आई थिंक यू रियली सिंग वेल। और इतने सारे कमेंट्स एवं थोड़ी आ रहे हैं नीचे, तो यू एक्चुअली सिंग वेल। अरे यार मैंने तो देखी नहीं कमेंट्स, मेरी तो आंखें बंद थी। नहीं बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। एवरीबॉडी इज सेइंग दैट यू हैव अ गुड वॉइस, सो ऑब्वियसली यू शुड थिंक मोर अबाउट योर सिंगिंग। ऑफ कोर्स। चलो बढ़िया है। बाय द वे जो अल्टीमेटली जो मैं ये है कि आई नो कि इट्स अ टाइम राइट नाउ वी आर एट 74 बट मुझे लगता है कि स्टिल आई वांट टू कन्वे अ मैसेज कि सिनेमा अभी मतलब कि इतना इशू हो चुका है सिनेमा को लेकर के कि यार अभी इसी लोग को ले लिया जाए कि सुशांत सिंह केस जो हुए तो उस पे मेरे को लगता है कि यार इफ एक्चुअली पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सिनेमा राइट कि अगर लोग सिनेमा समझ ही नहीं रहे हैं देन व्हाई आर दे जजिंग इट। अगर आप एक्चुअल सिनेमा पहचान ही नहीं रहे हो और आप मतलब ये बोल रहे हो कि करण जौहर अच्छा काम नहीं करते ये अच्छा काम नहीं करते वो नहीं करते बट एक्चुअली क्या सिनेमा है और एग्जैक्टली कैसे चलता है एंड उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है सीन है दैट इज वाई आई थिंक कि लोगों को समझना चाहिए कि कैसे मतलब कोई भी शॉट का मतलब क्या है। वो तो देख लेते हैं रेड रंग की ड्रेस पहनी लड़की लेकिन रेड का मतलब क्या है पिंक का मतलब क्या है ब्लू का मतलब होती है। एक बड़ी अनोखी सी बात है मैंने एक वीडियो में बताई भी थी अपने लोग जो है येलो रोज देखने येलो रोज किसी को दो तो दोस्ती का सिंबल मानते हैं बट येलो रोज एग्जैक्टली आता कहाँ से है एक्चुअली में ये है विक्टोरियन फ्लावर लैंग्वेज। तो विक्टोरियन फ्लावर लैंग्वेज के बाद जो है कि ये सब क्लियर होता है कि भाई येलो रोज का ये मतलब है रेड का ये मतलब है व्हाइट का ये मतलब है। तो जब लोग जानते नहीं तो फिर व्हाई आर दे मतलब जजिंग इट सो मच बट एटलीस्ट दे शुड नो ना कि व्हाट आर दे एक्चुअली वॉचिंग। दैट इज व्हाई आई थॉट कि यार थोड़ा सा मतलब सिनेमा को थोड़ा सा इस लेवल पे लेकर के आओ इंडिया में ताकि लोग एग्जैक्टली में समझ पाए कि क्या है सिनेमा कैसे चल रहा है। एंड फिलहाल तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई एम हेल्पिंग अदर्स विद द सिनेमा एस्पेक्ट्स। बस यही है चल रहा है आप बताइए अब। बढ़िया है। थैंक यू पुलकित। आई थिंक काफी सारे लोगों को अभी ये एक आपने नॉलेज दिया है कि यू नो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सिनेमा तो थोड़ा हाँ सा हमें उसको थोड़ा सा उसको डीप में समझने की भी जरूरत है। सो आई थिंक मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जाइए और पुलकित के पेज को लाइक करिए। इनका पेज है रीडिंग फिल्म्स, और देखिए और थैंक यू प्रमोट करिए बस मजे से। थैंक यू पुलकित। आई थिंक इट वाज वंडरफुल टू टॉक टू यू एंड लर्न सो थैंक यू मच फ्रॉम सो यू। मच। बहुत ही नया कॉन्सेप्ट सुनने थैंक को यू सीखने को मिला एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड agree to me. So thank you for coming and thank you for saying yes
It was lovely to speak to you. Thank you so much, Sarthak, for your time. And that was lovely invite from the show. मेरा काफी टाइम से मन था to come along with you, but due to some or the other reason, we could have not been along for a long time. But still, I'm still glad that you invited me for this. Perfect. Thank you, Pulkit. Have a great rest of your day and take care. You also, Sarthak. Thank you so much. Thanks. Bye. Bye bye. ओके वाओ कुछ अलग पर्सपेक्टिव सुनने को मिला, देखने को मिला. आई थिंक वी ओनली हैव 2 minutes लेफ्ट. 2 लाइन्स जो मैं गाने का मन कर रहा था मेरा, वो मैं गा देता हूँ एंड देन विल फिनिश द प्रोग्राम फॉर टुडे. ओह शिट, भूल गया मैं क्या गाने वाला था. पता नहीं, भी दिमाग में कुछ आ रहा था बोलते बोलते कि ये वाला गा देता हूँ, बट अभी याद नहीं आ रहा. सो आई थिंक अब अगले एपिसोड में ही गाऊंगा क्योंकि याद नहीं आ रहा मुझे. बट आई थिंक इट वॉज लवली टू सिंग अ सॉन्ग फॉर ब्यूटीफुल एंडिंग. अरे वही तो मैं कोशिश तो कर रहा था बट मुझे याद नहीं आ रहा. आई थिंक मैं वो गाने की कोशिश कर रहा था, होठों से छू लो तुम, वो मुझे मेरे दिमाग में घूम रहा था. तो मे बी आई जस्ट सिंग 2 lines ऑफ इट. आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो. बस ऐसे रैंडमली गा दिया मैंने. ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग टुडे. आई नो कि आज के एपिसोड में हमने 2 अलग अलग वैरायटी के लोगों से बात करी एंड आई थिंक इट्स लवली टू स्पीक टू बोथ ऑफ देम. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू गेस्ट ऑन वाई हाइट सीजन 2 एपिसोड 8. टिल देन टेक केयर, बाय एंड सी यू. अच्छा, ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होगा, ये मुझे डिस्कनेक्ट नहीं करने दे रहा है. सो 15 सेकेंड और, बट बाय फॉर नाउ.